Namaste Meghnesha Brahmanda Patani Isha Kartana Lucha Kartana Suchi Antu Vedana Guru Yekta Kunka Samana Vasmutam Saurasana Brahmanda Yadak Chantam Varsam Matra Nam Shri Yekta Sushmatam Yekta Nagat Dinar Pandurna Saraswati Narana Vashuti Sarana Saraswati Sarana Narana Vashuti Nandi Palitan Singli Yusha Jaldi Jaldi Pali Jalasi Jala Sabran Chandra Sadavani Ganesa Fitness Pantu Satya Vanuchin West Vandita Vanata Saraswati Ganesa Kampati Kampati Chadava Ganesa Varman Shamisa Malachima Krima Saraswati Saraswati Washington Ram Shikati Saraswati Man Varshan Prasan Tinara Panshi Valas Vash Kurpat Vash Vedas Pagam Devan Vasan Puravan Kalava Vash Hari Om. Good evening, everyone. My name is Kal Mahadev, and I'm one of the volunteers with the Hindu Society of Calgary. In one of the Indian languages, there is a very sort of a song which tells us Darakuna Idwanti Seva. Means it is not very often that we get such opportunities. And today is a very important day, and we have a divine soul among us, and he has been called so many, respectfully has been called so many, names, and I can feel that, in his presence, and you can feel that power. And on behalf of the Hindu Society, I want to welcome Brahmarshi Sri Kumar Swamiji, and it is our fortune that he is among us today. And it's really strange because this morning when I just was thinking that Swamiji is coming here, I could feel a power in me, and I felt so happy the whole day. And when I saw him, I think I can understand why the feeling is so much. What I want to do is, instead of talking about him, because there is a better person who knows him very well, I would welcome Rita. I'm so excited, I'm just forgetting everything. That is what happens when you are in the presence of a power. Rina, please introduce the Swamiji to the group. Namo Narayan. I'd like to take this opportunity to thank you guys all for coming today. Brahmarshi Kumar Swamiji has been called different names, a doctor, a healer. But for me, he's a divine grace. He is to me God. I can't tell you how much we love him. There's millions of followers all over the world, and we are honored here to come here today and shower his love and devotion here. So sit and listen to Guruji, Brahmarshi Kumar Swamiji, Koti Koti Pranam.
साथ संगत, सभी माताओं, भाई बहनों, आपने जिस प्रेम से, जिस लगन से, जिस हृदय की विशालता से ये जो निमंत्रण दिया, बुलाया, और किस श्रद्धा से, विश्वास से, किस आस्था से, किस कारण से आप यहाँ आए हैं, प्रेम से आए हैं, तो आप सब किसी चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अब हिंदी तो सब जानते हो, जो हिंदी नहीं जानता तो फिर प्योर भाषा में बोलनी, सब जानते हैं। अभी जैसे महापुरुष अभी कह रहे थे कि एक अलग अनुभव का, एनर्जी का, शांति का, एक फोर्स का, एक पावर का अनुभव हो रहा है। जो भी फोर्स है, वो पावर है, वो परमात्मा की होती है, परमात्मा की शक्ति की होती है। और ये जो हमारे वेद के ऋषि मुनि हैं, उन्होंने वेदों में जो मंत्र, जो गरिमाएं भगवान गणपति ने, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने, माँ दुर्गा ने, सभी ऋषि मुनियों ने, जो अनादि है, जिसका कुछ पता नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं इतने साल हो गए, वेद को इतने साल हो गए, रामायण को इतने साल हो गए। वो उनके कंसेप्ट है, वो उनकी थ्योरी है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट कुछ हो रहा है। जो फैक्ट है वो मन से परे है। भगवान श्री कृष्ण जैसे गीता में लिखा है कि तत्विधि प्राणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानितदर्शिना। श्री गुरु साहब में भी लिखा है कि सोचे सोच न हुई ये सोची लखवार, चुपा चुप न हुई ये बना पुरिया बार। कुरान पाक में भी लिखा है कुल हो वला हो आहत अल्हाद युल्दुलम याकुल को हो नाहत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा है, वो मन से परे है, दिमाग से परे है, बुद्धि से परे है। हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो सुख है, हमारे जो दुख है, हमारे जो काम है, बिजनेस है, देश है, जो कुछ भी है वो मन से चल रहे हैं। उसका कारण मन है। लेकिन जो परमात्मा है वो नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन करे दत्यापो न सुश्रुति मारता। कि अग्नि से जलता नहीं है। इस जगत की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अग्नि से जलती नहीं है। अग्नि से सब चीजें जल जाती हैं। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस संसार की जो पानी से गीली नहीं होती है, जिसको पानी डुबा नहीं सकता। और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हवा उड़ा के नहीं ले जा सकती। इस जगत की कोई भी चीज नहीं है। अगर तेज हवा आ जाए, भूकंप आ जाए तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमात्मा है, उसका अग्नि कुछ नहीं कर सकती, उसका वायु भी कुछ नहीं कर सकता, आकाश भी कुछ नहीं कर सकता। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां परमात्मा को न बना सकती है, न परमात्मा को समझ सकती है, न उसके बारे में कुछ लिख सकती है। जो लिखा जाएगा वो कम लिखा जाएगा। जैसे कोई बूंद है वो सागर के बारे में लिखे तो कम लिखेगी, लिख नहीं पाएगी। जैसे अंधेरा प्रकाश के बारे में लिखने लगी तो उसकी कंसेप्ट होगी, उसकी थ्योरी होगी, फैक्ट नहीं होगा। फैक्ट अंधेरा नहीं समझ सकता, क्योंकि जैसे अंधेरा सूरज के पास जाएगा तो लिखने वाला भी सूर्य बन जाएगा, प्रकाश बन जाएगा। परमात्मा की जो शक्ति है उसका ये जो निराकार जगत में आकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो रूप रंग से पार है, उस शक्ति का अनुभव वेदों ने, ऋषि मुनियों ने इस जगत को दिया। तो वेद में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिससे आप अपनी कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई भी तन की, मन की, धन की। मैं भी
पहले इस चीज को नहीं मानता था। भारत के राष्ट्रपति का, भारत के प्राइम मिनिस्टर का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, अनंत अनंत देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मैं चिकित्सक था, डॉक्टर था। तो मैं इसको नहीं मानता था कि क्या वेद से, पाठ से, पूजा से क्या लोगों का कल्याण होगा, लोग ठीक होते हैं। और ऐसे ऐसे रोगी थे जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन जब वेदों की शक्ति को जाना और उससे अनुभव किया, उससे लोग ठीक होने लगे, लोगों की समस्या ठीक होने लगी। तो देवीय जो विज्ञान है, फिर ये समझ में आने लगा, फिर साक्षात भगवान ब्रह्मा क्या है, शिव क्या है, नारायण क्या है, भगवान गणपति क्या है, माँ दुर्गा क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, वो प्रकट होने लगी। तो ये जो वेद के मंत्र मैं आप सबको दे रहा हूं, वो शक्तियों की, भगवान ब्रह्मा की, भगवान शिव की, भगवान नारायण की, जो वेदों में वर्णित है, जो शास्त्रों में वर्णित है, इस जगत का आध्यात्मिक जो भी है वो सब गीता में, रामायण में, वेदों में, शास्त्रों में वर्णित है। जो शास्त्रों में नहीं है उसका अर्थ नहीं है। शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते, जगत गलत हो सकता है। जगत का कल्याण तभी होता है जो सच पे आधारित है, जो सत्य है, वो शास्त्र सत्य पे आधारित है। तो प्रभु की कृपा से ये जो मैं वेद का विज्ञान है, जिससे आपकी कोई भी समस्या है, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, आत्मा की, परमात्मा की, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वैज्ञानिक हैं, किसी भी चीज को मानने वाले हैं, तो वेद के उस प्रज्ञा से आपकी सब समस्या का समाधान होगा। ये अनंत अनंत लोगों का अनुभव है, वैज्ञानिकों का अनुभव है, जो नहीं मानते थे उनका अनुभव है। तो मैं वेद के ऐसे ऐसे रहस्य में मंत्र हैं, ऐसे ऐसे श्लोक हैं, जिससे कोई भी समस्या है उसका समाधान हो सकता है। ऐसा भगवान शिव कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, भगवान ब्रह्मा कहते हैं। तो आपने जिस प्रेम से बुलाया है, जिस भाव से, भक्ति से बुलाया है, भारत में तो मिलना संभव नहीं है। हजारों लाखों लोग होते हैं, एक साल के बाद 1 मिनट का समय मिलता है, इतने लोग होते हैं। प्रेम की बात है। आप जिस प्रेम से, जैसे भगवान राम बिल्ली के पास चले गए, अकेली बिल्ली थी, वहां कोई नहीं था। भगवान श्री कृष्ण विदुर के पास चले गए, सतगुरु नानक साग खाने पता नहीं कहां चले गए, किसी किसान के पास। एक भगवान बुद्ध कहां चले गए। हजारों की नहीं है बात, प्रेम की है। प्रेम एक में भी हो सकता है और हजारों लाखों में भी हो सकता है और 2-4 में भी हो सकता है। तो जिस प्रेम से आपने बुलाया है, उस प्रेम से, भाव से, भक्ति से आपकी जो समस्या है, कोई भी प्रश्न है आपके, ये इस तरह से नहीं सुने जैसे कुछ संत आया है, ऋषि है। मुझे ऐसे समझे कि जैसे मैं आपके परिवार का कुछ सदस्य हूं, आपका भाई हूं, आपका पुत्र हूं, आपका अनन्य प्रेमी हूं, आपके साथ रहने वाला सखा हूं। उस मैत्रीय भाव से आप पूछिए, कोई मैं विशिष्ट नहीं हूं। जैसे इस जगत में अगर एक व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति जैसे साइकिल चला सकता है, हवाई जहाज चला सकता है, कार चला सकता है, तो सभी चला सकते हैं उसको। अगर एक व्यक्ति अध्यात्म को अरे बेटे, जो मैं बता रहा हूं ये परमात्मा की बहुत कृपा है। ये जो बताया जा रहा है, ये मैं अपमान नहीं कर रहा, ये वास्तव में जो आप चाहते हो रहा है। ये देश की परंपरा, ये सारा देश मानेगा जो मैं बता रहा हूं, मानना पड़ेगा लोगों को। और मैं आज आपको, ये मैं आपके सामने, हर आदमी को ये पढ़ना पड़ेगा। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका कल्याण होगा और सारे देश का कल्याण होगा। पहले आप समझ, मैं जी कह रहा हूं, आप आगे पढ़ने। ये इसका, ये लास्ट वाले इसका ये पासवर्ड होता है, ठीक है। ये पहला मंत्र, पहला शब्द, ये दूसरा, ठीक है, तीसरा, ये चौथा। अब इसका मैं अर्थ बताऊंगा क्या क्या है, पहले समझ लो है क्या, ठीक है। फिर ये, फिर ये, ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये लास्ट। अभी मैं आपको बता रहा हूं
है क्या, इसकी शक्ति क्या है, इसकी पावर क्या है, ये काम कैसे करेगा। अभी आप डॉक्टरों को बुलाना, ऐसे ऐसे रोगियों को लाना जिसका कोई इलाज नहीं है, और 10 मिनट के पाठ से रोगी ठीक होने लगे। पहले आप समझो कि भारत की शक्ति क्या है, भारत की मर्यादा क्या है, भारत की परंपरा क्या है, वो आप पहले समझो। बीज मंत्र की पुस्तक है बेटे, लाओ मुझे। फिर आप देखो मैं दे क्या रहा हूं आपको, मैं देने क्या आया। अब जो बीज मंत्र आप सबको बांटेंगे, ये बीज मंत्र की पुस्तक है, जो छुपे मंत्र है, इसमें हमने ये इसको दे दिया। ये पहले पढ़ रहे हैं ना, फिर ये ठीक है, ये सारा आपने इसमें लिख दिया। ये जिसको वेदों में छुपाने का दिया है, छुपाना है, किसी को बताना नहीं है, उसमें इतनी शक्तियां हैं, वो हम अब सबको छुपाने के रहस्य को उद्घाटित करने के लिए, बताने के लिए है सबको, इसमें लिख के दे रहे हैं। ठीक है, इसमें इतनी शक्तियां हैं। अब मैंने आपको बता दिया ना ये, अब आप इसको बोल भी नहीं सकते, बोल के दिखाओ। ठीक है, हम तो बोलेंगे थोड़ा, ये चाहते हैं हम सब लोग सुने ना कि आप क्या। नहीं 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 नहीं, आप फिर नहीं समझ पा रहे। आप जो चाहते हो, आपके अंदर जो दर्द है मानवता का, पहले समझो, जो इंसानियत का दर्द है ना आपके अंदर, उसका ये समाधान वेद करेंगे। आप इसको बोलिए, जोर से बोलो, सबको सुनाइए। ला, आप अब जोर से बोलो सबके लिए, आप फिर बोलो, ठीक है। अब देखो वेद में ये लिखा है, ये छुपाया गया है और प्रकट किया गया आपको, और प्रकट करने के बाद भी ये बोल नहीं सकते, कोई भी आदमी नहीं बोल सकता इसको, बता दिया तब भी नहीं बोल सकते, सामने लिख दिया। अब तो पढ़े, ये तो लिखा है, वो तो इसको फिर पढ़े, ठीक है। अब आप पढ़ो बेटे, एक मिनट, एक, ठीक है। अब बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, पहले ये समझ लो, फिर आपका प्रश्न कर लेना। पहली बात तो वेद से हाथ में रखना, वेद से मंत्र ढूंढे भी नहीं जा सकते, ढूंढ के और क्यों छुपाए ये भी मैं बताऊंगा। इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो छुपाए क्यों, अगर अच्छे तो छुपाए क्यों, बड़ा बड़ा कल्याणकारी प्रश्न के भी छुपाने की क्या जरूरत थी, सबका कल्याण आता। पहले ये बताऊंगा छुपाए क्यों है, पहले मैं ये दे रहा हूं, ये पहले समझ लो क्या मंत्र है। दूसरा नंबर है कि मंत्र ढूंढ नहीं सकता कोई भी आदमी। अब ये संस्कृत के विद्वान है, ब्राह्मण है और बहुत समझदार है, कोई भी इस ब्रह्मांड का व्यक्ति, गुरु, संत इस मंत्र को नहीं ढूंढ सकता, ढूंढ भी नहीं सकता, सारी जिंदगी बैठा है, ढूंढ नहीं सकता, ढूंढने के बाद पढ़ नहीं सकता, सामने रख दिया, पढ़ नहीं सकता। अभी मैं इसको आपको बोल के सुनाता हूं, अब आपके पास है ना, अब इसको देखो तुम। अभी पहले, अब ये बोल रहे हैं, इसकी आपने बात सुनी, अब मैं बोलूंगा वो सुनना, ये इसका है। अब इसका एक भाग है ये, और 10 मिनट के, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा, आप केवल तिलक या इस हाथ पे तिलक नहीं लगाते तो जल लगे, 18 बार खाली आपने बोला इस मंत्र को, और तिलक लगा के चले जाना, आपका जो काम नहीं होता वो काम हो जाएगा। इतनी शक्ति इसके अंदर, कोई भी लेकिन गलत काम नहीं होगा, न्यायोचित काम होगा। अभी इसका पासवर्ड है, अभी आप ये दुर्गा सप्तमी है ना, सब पढ़ो, इसमें भगवान शिव पता है क्या कहते हैं, किलक। जो किलक में भगवान शिव कह रहे हैं कि जो इसका निष्कीलन नहीं करेगा, जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। ये क्यों लिखा भगवान शिव ने? जो दुर्गा सप्तमी का पाठ करता है और इसका दुर्गा सप्तमी का कीलन नहीं करता, इसके कीलन को जानता नहीं है, कीलन को जानकर उसका प्रयास करके उसका पाठ आरंभ करे, जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। ये भगवान शिव क्यों कह रहे हैं? भगवान शिव के वचन है ना कीलन। ये भगवान शिव कह रहे हैं जो इसका पाठ करेगा और निष्कीलन नहीं करेगा उसका नाश हो जाएगा। इसका निष्कीलन नहीं किसी को बताऊंगा, मैं निष्कीलन भी बताऊंगा आपको, निष्कीलन क्या है, ठीक है। अब ये वेद के जो मंत्र हैं, ये भगवान शिव की वाणी है, ये मानव की वाणी नहीं है।
भगवान की वाणी है, भगवान बोल रहे हैं। भगवान शिव ने भस्मासुर को दे दिया मंत्र, भस्मासुर का भगवान मुझे लोग तंग करते हैं, मुझे कोई शक्ति दो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा ठीक है जाओ। उसने कहा ये शिव को पहले खत्म करो, इसलिए बंद किया भगवान शिव ने, लाभ किया। अब बंदूक है, बंदूक हर किसी को सरकार क्यों नहीं देती, कार हर किसी को क्यों नहीं दे देती, वीजा हर किसी को क्यों नहीं दे देती, आप अपने घर के पैसे हर किसी को, ये मंत्र की चाबी हर किसी को क्यों नहीं दे देती, हिंदू क्यों नहीं है, और ये हर किसी को क्यों नहीं पकड़ा देते, पत्नी अपने गहने हर किसी को क्यों नहीं दे देती, आप अपना बैंक बैलेंस इवन आपका पासवर्ड हर किसी को क्यों नहीं दे देते, बेकार के जो ईमेल आते हैं ना उसका पासवर्ड भी आप नहीं देते किसी को। और ये तो वेद के मंत्र है। हमारे सरकार के कितने रहस्य हैं, अमेरिका के, कनाडा के, तो हर किसी को क्यों नहीं रहस्य बताते, छुपाए जाते हैं। हमारे अंगों को क्यों छुपा के रखते हैं, हम सबके सामने प्रकट करते हैं। महत्वपूर्ण चीज को छुपाया जाता है क्योंकि गलत आदमी हाथ में ना आ जाए। डॉक्टर पोटाशियम साइक्लेट क्यों छुपा के रखते हैं सबके सामने, ठीक है बेटे, महत्वपूर्ण चीज को छुपाया जाएगा और न्यायोचित आदमी को दिया जाएगा। अब आप न्यायोचित है तभी मैं दे रहा हूं ना, आप योग्य है तभी मैं दे रहा हूं आपको, अयोग्य को नहीं देंगे और अयोग्य को समझ में भी नहीं आएगा और करेगा उसका कोई कल्याण नहीं होगा। ये पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, इसमें भगवान शिव ने वो लिखा है, क्या भगवान शिव झूठ बोलेंगे, इसका पाठ करके क्यों नहीं कल्याण होगा, थोड़ा होता है लेकिन जितना होना चाहिए क्यों नहीं होता, वो एकदम होने लगेगा इससे, वो मैं आपको रहस्य बताऊंगा। पहले तो ये समझिए, ठीक है, ये वेद का रहस्य है। और वेद पहले समझो कि मैं आपको वैदिक दे रहा हूं, शास्त्रों दे रहा हूं ना, कोई मेरे बनाए हुए तो नहीं है ना, ये पहले ये समझ लो कि जो मैं दे रहा हूं ये मेरे बने हुए नहीं है। आपका कल्याण होगा तो मेरे द्वारा नहीं होगा, पहले समझ लो, कि वो भगवान शिव के द्वारा होगा। मुझे कोई गुरु मत मानना, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका पुत्र हूं। मैं जिस तरह से भारत की, विदेशों की, ऐसा कोई नेता विजेता नहीं है जिसकी समस्याओं का समाधान इस मंत्रों से जो आए हैं, जो नहीं आए उनकी बात नहीं है। पीछे क्लिंटन की समस्या थी, आपको पता था, वो नहीं मानता था, उनकी सेक्रेटरी ने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे व्हाइट हाउस में बुलाया, तो कहता है क्या मंत्रों से कल्याण होता है। मैंने कहा ये बेटे पहले तुम बोलो बेटे। नहीं वही बोल रहा हूँ, मतलब मैं जस्ट आई वांट टू सपोर्ट मानसिंह जी, जो इनका क्वेश्चन ये था, देखिए इंडिया में जो अब तक चला रहा है वो अब तक मंत्रों से सॉल्व क्यों नहीं हुआ। मैं वही तो बता रहा हूँ, उसी का तो बता रहा हूँ ना। नहीं मतलब वो आपने मंत्र बता दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपने रीजन नहीं बताया क्या अब तक कोई ऋषि मुनि नहीं हुआ जिन्होंने का प्रॉपर जाप किया। ये है ना कि भारत के देश ऋषि मुनि, ये भगवान राम करते थे, भगवान कृष्ण करते थे, तो मैं महात्मा गांधी करते थे, उन्होंने देश आजाद इसी से कराया। जैसे मैंने औरंगजेब की एग्जांपल दी थी, राइट, सोमनाथ का मंदिर लूटा, इतने लोग मारे गए, हाँ, तब वहां पे कोई ऋषि नहीं था। वो भी बता रहा हूँ आपको, वो भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, वो भी बता रहा हूँ। पहले एक चीज को समझ लो, आप उसको ऑफेंडेड महसूस ना करें, मैं हाथ जोड़ कर अच्छा है ये बिल्कुल इसका उद्देश्य नहीं है, ये बड़ा कल्याण हम यंग लोगों के मन में जो विचार आते हैं हम ईमानदारी से बेटे आपके रखने की कोशिश करें। पहले समझो, ये जो आपके प्रश्न है बड़े कल्याणकारी है और ये सबके अंदर आने चाहिए, इसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। पहले आप एक चीज को समझ लो, पहले आप समझ लो, आप हैरान हो जाओगे कि हमारे वेदों में इतनी ताकत है, हमारे शास्त्रों में इतनी ताकत है, और उसके बाद लोग धर्म बदल गए। इतनी शक्ति होने के बाद भारत भिखारी की तरह है, गरीबी है, कंगाली है, लोग कोई आके जब चाहे ब्राह्मणों को मार दे, जब चाहे कुछ कर दे, अपमान कर दे। ये क्या है? ये बहुत गरिमापूर्ण प्रश्न थे इनके, इसका उत्तर मैं इनको पहले दे रहा हूं। पहले ये समझे, ब्राह्मण समझे, ये विद्वान है, और मैं इसको समझ के जो ये चाह रहे वही मैं करने के लिए आया हूं, या मैं किसी के लिए आया हूं, आपसे पैसे लेने आया हूं। भारत में मेरी 1 सेकंड की फीस $500 है, जो जानते हो को पता है, साल के बाद नंबर आता है, लेकिन मैं आपसे क्या लेने आया हूं? क्या दोगे आप? मुझे दे नहीं सकते। वीजा आपने नहीं दिया, टिकट मैं फर्स्ट क्लास लेके आता हूं और रुकता हूं अपने में, खाता हूं अपने में, किसी का दाम नहीं लेता। पहले सुन लो, इसके बाद मैं देने के लिए आया हूं। वहां आप आओगे तो साल के बाद नंबर आएगा आपका, और 1 सेकंड का,
और सिर्फ लिखता हूं, बात करने का समय नहीं है। और आपके प्रेम से आया हूं, आपको देखता हूं। इन्होंने बुलाया प्रेम से, बार गुरु जी आओ, तो आ गए। उसमें धन की बात नहीं है, गरीबी अमीरी की बात नहीं है, बात आपके प्रेम की है। पहले ये समझ लो कि हमारे देश में इतनी गरिमा है, उसके बाद देश का ये हाल है। हम भिखारियों की तरह हैं और जो हमें लूट के लेके वो राजा बने हुए हैं। और फिर हमारे धर्म का ही वो जो धर्म है उसको भी नुकसान कर रहे हैं। ये मैं इसका जवाब दे रहा हूं, इनकी तरह बोल नहीं रहा हूं, इनको जवाब दे रहा हूं। आप पहले ये करो। पहले तो हमारे घर में अब जो हिंदू लोग आ गए हैं उनके बच्चे हिंदू नहीं रहे। पहले तो सिखों के बच्चे सिखी नहीं रहे। माता पिता आए थे, चलो बच्चे सुखी होंगे, यहां रहेंगे, धन कमाएंगे, क्योंकि यहाँ के विज्ञान है, यहाँ का विकास है, यहाँ का विकास सीखे। और लेकिन यहाँ के विकास में हमारी संस्कृति ना खत्म हो जाए। पहले तो माँ बाप भी संस्कृति से विच्युत हो गए, अलग अलग, और बच्चे उनका, पहले तो बच्चे नहीं कहना मानते माँ बाप का, वो माँ बाप का जिन्होंने प्राण लगा दिए बच्चों के लिए। दूसरे कहां से मानेंगे? पहले तो ये माँ बाप इसका पाठ करेंगे 10-15 मिनट, बच्चे करेंगे। बच्चे को नौकरी आपको ढूंढनी पड़ेगी, ये लोग आपकी नौकरी करेंगे। जब मेरा NAC बर्मिंघम में प्रोग्राम था, तो उस हाल के अंदर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, बड़े बड़े जॉन रेंटम लोग आए, उनकी टिकट 50 करोड़ होती थी, सबसे बड़ी थी, तो टिकटें पूरी नहीं मिलती थी। मैंने कहा अगर मेरा प्रश्न सुनना है तो 108 करोड़ की टिकट लगाओ। कहते 108 करोड़, संतों को लोग फ्री में नहीं सुनते, टिकट लगा के कौन सुनेगा? कहते गुरुजी आप क्या कर रहे हो? NEC हॉल को बुक किया, उस बुक करने में 1 करोड़ रुपया खर्चा है। मैं मुझे बुलाना है तो NEC हॉल को बुक करो। कहते गुरुजी यहाँ ऐसी संत बात मारते 10 आदमी नहीं आते, और आपने टिकट लगा दी 108 करोड़, या पंडितों को, ब्राह्मणों को नमस्कार भी 1 करोड़ करेंगे, और आप 108 करोड़ टिकट का लगा दिया आपने आपके प्रश्न सुनने के लिए। तो मैं जो आएगा उसको मैं दूंगा, लगाओ। टिकट लगा दी 108 करोड़। वहां बैठने की जगह नहीं थी, टिकट की ब्लैक हुई, और लोगों ने मजाक किया अंग्रेजों ने, ये क्या है? जब उनके सामने लोगों को बताया, एक संस्था ने लिखा वहां की, कहते अगर वेद के मंत्रों से किसी का कल्याण होता है तो हम उसको 16,000 करोड़ इनाम में देंगे। वहां के अखबारों में छपा। फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनको उनके डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक नहीं हो सकते, ये मरने वाले हैं, इनका कोई इलाज नहीं है, ये मरेंगे, अगर बच भी जाएंगे तो कोमा में चले जाएंगे, बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते। वो व्यक्ति, उनके माता पिता ने पाठ किया, और हजारों लोगों ने बताया कि ये हमारे बच्चे ठीक हो गए हैं और ये चल के आए हैं। तो डॉक्टर हैरान हो गए, वो सारी मेडिकल साइंस हैरान हो गई। उन्होंने फिर पाठ किया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड में 2,500 ईसाई इसका पाठ कर रहे हैं, 2,500।